السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، زندگی کیسے معصوم بچوں کو سفاک مجرم بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کے ذاتی اختلافات بچوں میں چھپے حیوان کو آزاد کر دیتے ہیں اور معاشرہ انہیں گینگسٹر کا نام دے دیتا ہے۔ ایسی ہی کہانی ہے 1968 میں پیدا ہونے والے طاہر نفیس نامی گینگسٹر کی، جو کہ 5 بہن بھائیوں میں سے چوتھے نمبر پر تھا۔ طاہر کا بچپن لاہور کے علاقہ بھاٹی میں گزرا۔ ان کے ماں باپ کے درمیان جھگڑے روز کا معمول تھا اور یہی جھگڑے ان کے درمیان طلاق کی وجہ بنے۔ یوں ماں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا طلاق کے وقت، کیونکہ بچے بھی چھوٹے تھے اور باپ کو کام پر جانا پڑتا تھا، لہٰذا ماں کی غیر موجودگی میں طاہر سمیت باقی بچوں کی ذمہ داری ان کی بڑی بہن، جو کہ صرف 14 سال کی تھی، نے سنبھال لی۔ چند سالوں کے بعد بڑی بہن کی شادی ہو گئی، لیکن اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا ساتھ چھوڑنے کی بجائے انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ ظاہر ہے کہ خاوند اور سسرالی اس کے بہن بھائیوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے، لہٰذا دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات جنم لینے لگے اور آخرکار بچوں کو دوبارہ سے ان کے باپ کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں بھی حالات بدل چکے تھے، کیونکہ طاہر کے والد نے بھی دوسری شادی کر لی ہوئی تھی اور سوتیلی ماں کو بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، لہٰذا بچوں کی زندگی اجیرن ہوتی چلی گئی۔ ادھر طاہر کی ماں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ جب انہیں حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے سابق خاوند سے کہا کہ آپ بچے مجھے دے دیں، میں انہیں پال لوں گی، آپ صرف خرچہ دیتے جائیں۔ لہٰذا طاہر کے والد، جس کا نام محمد اشرف تھا، کا بلال گنج کے علاقے ملک پارک میں ایک گھر تھا، وہ انہوں نے بچوں کے نام کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بچوں کی پرورش کے لیے ماہانہ خرچہ بھی دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کی زندگی میں کوئی سدھار نہیں آیا، کیونکہ اب جس گھر میں وہ پہنچے تھے وہاں ان کو سگی ماں کی شفقت تو مل گئی، لیکن وہیں انہیں سوتیلے باپ کے غیظ و غضب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ احساس کمتری اور محرومیوں کے سائے میں پرورش پانے والا طاہر میٹرک کے بعد کالج پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اپنی نوجوانی کے اس دور سے گزر رہا تھا جس میں صحیح اور غلط میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لہٰذا سوتیلے باپ کے رویے اور ناانصافیوں سے تنگ آ کر اس نے گھر چھوڑ دیا اور بلال گنج والے گھر میں رہنے لگا۔ طاہر کا حقیقی نام طاہر نفیس تھا، ایک انتہائی خوش شکل اور ہینڈسم نوجوان جو گفتگو میں کمال مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین بائیکر بھی تھا۔ اپنی انہی تمام خوبیوں کی وجہ سے طاہر کچھ ہی دنوں میں کالج کی ہر دل عزیز شخصیت بن گیا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کالج کے دوست اسے پرنس کہہ کر بلانے لگے اور یوں اس کا نام طاہر نفیس سے طاہر پرنس پڑ گیا۔ طاہر پرنس کا شمار کالج کے ذہین مگر انتہائی دلیر اور شرارتی لڑکوں میں ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے موٹر سائیکلنگ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، لہٰذا بگڑے ہوئے نوجوانوں کی طرح وہ 40-50 لڑکوں کے گروپ کے ساتھ اکثر و بیشتر لاہور کی سڑکوں پر ویلنگ کیا کرتا تھا۔ ان دنوں نوجوانوں میں کاواساکی ٹریل بائک کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا، جو اسپیشلی طور پر اسٹینڈ اور ون ویلنگ کے لیے بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والی ہوں، آپ اس کو طاہر پرنس کی حمایت یا جرأت کچھ بھی نام دے سکتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں تھا، ایک بار اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات پر 5000 روپے کی شرط لگ گئی کہ وہ MAO کالج کی 6 فٹ اونچی اور صرف 9 انچ چوڑی دیوار کے اوپر بائک چلائے گا، اور پھر طاہر پرنس نے MAO کالج کی پوری دیوار پر بڑی دلیری کے ساتھ موٹر سائیکل چلائی اور 5000 روپے کی شرط بآسانی جیت گیا۔ کیونکہ یہ ایک بہت اچھا موٹر سائیکلسٹ تھا تو اس نے اپنے اسی ٹیلنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹی موٹی ڈکیتیوں سے اپنی مجرمانہ زندگی کا آغاز کر دیا۔ طاہر پرنس کی ذات پر یہ دھبا ہے کہ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے لاہور میں راہ چلتی ہوئی خواتین سے پرس چھیننے جیسی شرمناک واردات کی شروعات کی۔ MAO کالج سے FA کرنے کے بعد طاہر پرنس نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہاں اس کی دوستی عبداللہ میر نامی ایک نوجوان سے ہوئی جو آج کل UK میں مقیم ہے اور کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ عبداللہ میر گورنمنٹ کالج کا کافی اثر و رسوخ رکھنے والا اسٹوڈنٹ تھا، جس نے بلیک ایگل نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جس میں احسان اللہ بوبی اور طاہر پرنس جیسے بڑے نامور طلبہ شامل تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تنظیم میں جوک در جوک طلبہ شامل ہوتے چلے گئے اور بلیک ایگل تنظیم ایک بہت بڑے گروپ کی شکل اختیار کر گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ ایک وقت میں اس تنظیم کو لاہور میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ گو کہ بلیک ایگل تنظیم کے حقیقی بانی عبداللہ میر تھے، لیکن سب سے زیادہ شہرت طاہر پرنس کے حصے میں آئی، لہٰذا ہر طرف اسی کے نام کا توتی بولنے لگا اور یوں سیاسی حلقوں میں بھی بلیک ایگل اور طاہر پرنس کے نام کی گونج سنائی دینے لگی۔
यूँ उस दौर के पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं सुलेमान तसीर, नवाबजादा नसरुल्लाह और जहांगीर बदर जैसे बड़े लीडरान के साथ उनके करीबी ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके बाद ताहिर प्रिंस ने पीपल्स पार्टी ही की स्टूडेंट तंजीम PSF में शमूलियत इख्तियार कर ली और सियासतदानों के हाथों की कठपुतली बनकर उनके जायज और नाजायज काम करने लगा। कॉलेज से फारिग होने के बाद ताहिर प्रिंस ने लव मैरिज की और उसके फौरन बाद 1988 में उसने पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामिल अली आगा के खिलाफ काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। कामिल अली आगा पहले भी इस इलाके के काउंसलर रह चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें ताहिर प्रिंस के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वही कामिल अली आगा हैं जो माजी में काफ लीग के सेनेटर भी रहे हैं। लोग ये बताते हैं ताहिर प्रिंस ने बल्दियाती इलेक्शन जीतने के बाद इलाके में इस कदर भरपूर काम किया जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती थी। पॉलिटिशियन का मंजूर नजर होने की वजह से ताहिर प्रिंस की मकबूलियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि खुद पुलिस वालों को भी जब किसी सियासी लीडर से कोई काम निकलवाना होता था या फिर किसी गैंगस्टर को गैर कानूनी तौर पर हड्डे लेन लगवाना होता तो वो ताहिर प्रिंस से ही कहते थे। उन्हीं दिनों बिलालगंज के एक रिहायशी हाजी बांका, जो कि ताहिर प्रिंस का करीबी ताल्लुक वाला था, का कत्ल हो जाता है। उस कत्ल के मुकदमा में ताहिर प्रिंस मकतूल पार्टी की तरफ से अपनी गवाही दर्ज करवा देता है, जिसके नतीजा में कातिल पार्टी, जो कि दाता दरबार के मुजावर भी थे, वो ताहिर प्रिंस के दुश्मन बन जाते हैं। 1999 के आखिर में ताहिर प्रिंस लंदन चला जाता है और हाजी बांका के कातिलों को अदालती कार्रवाई के दौरान बरी कर दिया जाता है। लिहाजा हाजी बांका का बेटा बाबर ताहिर प्रिंस से लंदन में राब्ता करता है और उसे अपने बाप के कातिलों से बदला लेने का कहता है, जिसके कुछ दिनों बाद बाबर लाहौर में मुजावर पार्टी के खानदान के एक फर्द को कत्ल कर देता है। इस कत्ल की FIR हाजी बांका के बेटे बाबर, ताहिर प्रिंस और उनके खालद नामी बहनोई के खिलाफ दर्ज करवाई जाती है। ताहिर प्रिंस लंदन से वापस आता है तो हाई कोर्ट की जानिब से उसे सजाए मौत सुना दी जाती है, जबकि हाजी बांका के बेटे बाबर को उम्र कैद के साथ साथ फांसी की भी सजा सुनाई जाती है। जिस दिन ताहिर प्रिंस को फांसी की सजा सुनाई जाती है उसी दिन ये लंदन की फ्लाइट पकड़ता है और फरार हो जाता है, जिसके बाद बतौर इश्तिहारी उसके पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से उसके सर की कीमत 50,000 से शुरू होती 50 लाख तक पहुंच जाती है और फिर आए दिन मुख्तलिफ थानों में ताहिर प्रिंस की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ डकैती समेत कई तरह की FIR कटने लगी। ये 1990 की बात है जब ताहिर प्रिंस लंदन में एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था। तभी वहाँ लंदन में मुकीम मुजावर पार्टी एक फर्द ने इंग्लैंड के कुछ काले और कुछ गोरे अफराद के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। जवाब में ताहिर प्रिंस ने कसासी की दुकान से छुरी उठाकर मुजावर पार्टी के बंदे को कत्ल कर दिया। ताहिर प्रिंस ने लंदन पुलिस को गिरफ्तारी दे दी, जिसके बाद अदालत की जानिब से उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। दिन रात और कुछ ईस्टर वगैरह की छुट्टियां मिलाकर ताहिर प्रिंस ने तकरीबन 6 साल लंदन जेल में गुजारे। सजा खत्म होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उससे पूछा कि अगर तो आप लंदन में रहना चाहते हैं तो अपना वकील हायर करें और एसिलियम अप्लाई कर दें, वरना दूसरी सूरत में हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। ताहिर प्रिंस ने दूसरी ऑप्शन को चुना और डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि ताहिर प्रिंस पर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर इनाम था। लिहाजा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के फौरन बाद उसने गवर्नमेंट पंजाब मियां अजहर को फोन करके अपने पाकिस्तान आने की इत्तला दी। मियां अजहर की हदायत पर SP और DSP समेत लॉयर माल थाना की पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाहौर ले आई। उससे अगले ही दिन SHO करामत भट्टी ने ताहिर प्रिंस को अदालत में पेश किया, जहां उसने जज साहब के सामने अपना पासपोर्ट रखा और बताया कि जिस दिन मुजावर पार्टी के बंदे का कत्ल हुआ उन दिनों मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं, लिहाजा इस केस में बिल्कुल बेगुनाह हूँ जिसमें मुझे सजाए मौत सुनाई गई है। ताहिर प्रिंस के दुश्मनदार होने की वजह से अदालत ने उसे सेम डे ही हवालात भेजने की बजाय कोर्ट लखपत जेल भेज दिया। कहा जाता है ताहिर प्रिंस का नाम इस हद तक मकबूल हो गया था कि जब वो जेल पहुंचा तो वहाँ कैदी उसकी एक झलक देखने के लिए जोक दर जोक उमड़ आए। न सिर्फ ये बल्कि एक माह बाद जब उसे जस्टिस मुनीर शेख की अदालत में पेश किया गया तो उसे बेड़ियां लगी देखकर जज उससे पूछता है कि क्या तुम ही ताहिर प्रिंस हो, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। जिसके बाद वकीला के दरमियान बहस शुरू हुई। सारा केस सुनने के बाद जस्टिस मुनीर शेख ने ताहिर प्रिंस को जमानत पर रिहा कर दिया। ताहिर प्रिंस के वकील ने जज साहब से कहा कि बराए मेहरबानी अपने सामने ही इसकी हथकड़ियां भी खुलवा दें, क्योंकि हमें ये खतरा है कि कहीं पुलिस उसे जाली मुकाबला में
में मार न डाले। तो जज साहब ने जेलर को ताहिर प्रिंस की हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया। जवाब में जेलर बोला कि सर मेरे पास चाबी नहीं है, जिस पर जज साहब ने उसी वक्त हथौड़ा और चैनी मंगवाई और अपने सामने हथकड़ियां तोड़वा कर ताहिर प्रिंस को आजाद कर दिया। शायद ये गवर्नर पंजाब मियां अजहर का कमाल था कि एक मफरूर जिसके सर की कीमत पूरे 50 लाख थी, वो पहली ही तारीख में अदालत से जमानत पर बरी हो जाता है। ताहिर प्रिंस जब अदालत से बाहर निकलता है तो 100-150 के करीब सहाफी उसे घेर लेते हैं। सहाफियों से जान छुड़वाने के बाद वो बिलालगंज जाने की बजाय गार्डन टाउन के एक घर में 3 माह तक मुकीम रहता है। कहा जाता है 3 माह बाद जब ताहिर प्रिंस बिलालगंज पहुंचता है तो मंजर कुछ यूं था कि एक जानब हर तरफ लोग ही लोग थे जो उसके गले में न सिर्फ फूलों के हार डाल रहे थे बल्कि उसके हाथों को चूम रहे थे, जबकि दूसरी जानिब उसके दुश्मन उसे खत्म करने के लिए मौके की ताक में बैठे थे। और फिर सन 1996 के एक रोज ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौका पर जब ताहिर प्रिंस अपने ग्रुप के हमरा लंगर तकसीम कर रहा था, तब उसके मुखालिफ ग्रुप जिसमें नाजी भट्ट, सना, दाऊद और काली वगैरह शामिल थे, शराब के नशे में धुत वहां पहुंचते हैं और क्लाशनकोफों से ताहिर प्रिंस और उसके आदमियों पर अंधाधुंध फायर खोल देते हैं। इस हमला में 6 मासूम बच्चों समेत टोटल 18 लोग जान बहक हो जाते हैं, जबकि 35 के करीब अफराद बुरी तरह से जख्मी हुए। मंजर ये था कि हर तरफ खून ही खून था और लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी की टांग पे गोली लगी, किसी के मुंह पे, किसी के बाजू पे और किसी के सीने पे गोलियां लगी। यूँ समझिए कि एक क़यामत का मंजर था। अल्लाह की करनी के इस हमला में ताहिर प्रिंस जिंदा बच गया। उसे सिर्फ एक गोली लगी थी तो जो उसके माथे को छूते हुए ऊपर की तरफ गुजर गई थी। कहा जाता है ईद मिलादुन नबी के मुबारक दिन पर होने वाले इस क़यामत के वाक़े के बाद हुकूमती मशीनरी हरकत में आई और वो तमाम अफराद जो बदमाशी और शराब के नशे में धुत कई मासूम लोगों के कत्ल का बाइस बने, अगली ईद मिलादुन नबी से पहले उन सब का दुनिया से नामो निशान तक मिटा दिया गया। ताहिर प्रिंस जो कि उस खूनी हमला से बच निकला था, अब लाहौर में उसने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। लेकिन उस लाहौर शहर की तारीख बड़ी गहरी है। यहाँ ऐसे ऐसे सपूत जो चांद और सूरज को अपने हाथों में उठाए फिरते थे, वो अपनी ताकत के नशे में मनो मट्टी तले कब चले गए ये उनको भी पता नहीं चला। और ताहिर प्रिंस के साथ भी यही हुआ। जिन दिनों वो लंदन में था तो उसकी गैर मौजूदगी में लाहौर के हालात काफी हद तक तब्दील हो चुके थे। उसके तमाम दोस्त या तो अपनी लाइन बदल चुके थे या फिर आतिफ चौधरी की तरह पुलिस मुकाबलों की भेंट चढ़ चुके थे। लेकिन ताहिर प्रिंस ताकत के नशे में वक्त की नजाकत को समझने से कासिर थे और अभी तक यही समझ रहा था कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ कि पंजाब हुकूमत ने ताहिर प्रिंस से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। ये सन 1999 का वाकया है जब बादामी बाग थाना के SHO अबरार शाह ने काली नामी एक बदमाश को पकड़ रखा था, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई थी। यानी पुलिस ने काली को हबस बेजा में रखा हुआ था। लिहाजा काली की गिरफ्तारी का फायदा उठाते हुए अफसरान बाला की तरफ से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबद बक्सर को ये टास्क दिया जाता है कि ताहिर प्रिंस जो कि बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है और अपनी पूरी ताकत के साथ कब्जा ग्रुप और लैंड माफिया जैसे जराइम को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा ऐसा ना हो कि ये लाहौर शहर के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दे जो कि पुलिस के लिए एक सवालिया निशान बन जाए। तो इस मसले को जितना जल्दी मुमकिन हो खत्म करो। आबद बक्सर ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए SHO अबरार शाह को फोन किया और उससे कहा कि वो ताहिर प्रिंस के पास जाए और उससे कहे कि CCPO लाहौर उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। आबद बक्सर की हदायत पर अबरार शाह ताहिर प्रिंस को फोन करके उसे मिलने का कहता है। जब अबरार शाह ताहिर प्रिंस से मुलाकात करने PC होटल पहुंचता है तो वो उस वक्त पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। अबरार शाह उसे बताता है कि CCPO लाहौर उससे कुछ पूछना चाहते हैं, लिहाजा मेरे साथ चलो। ताहिर प्रिंस उसके साथ चल पड़ता है। अभी वो होटल की पार्किंग तक ही पहुंचता कि उसे खतरे का एहसास होता है। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, अबरार शाह उसकी कैफियत को भांप जाता है और अपने मुलाजमों की मदद से उसे उठाकर गाड़ी में फेंकता और PC होटल की हदूद से 1 किलोमीटर दूर ले जाता है। अबरार शाह आबद बक्सर को फोन करके मौजूदा सूरत हाल से आगाह करता है तो जवाब में आबद बक्सर उसे बोलता है कि ताहिर प्रिंस को लेकर बंद रोड की तरफ पहुंचो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ताहिर प्रिंस के इनकाउंटर को हकीकी साबित करने के लिए एक ब्लैक कलर की होंडा गाड़ी जिसे एक पुलिस एहलकार ड्राइव कर रहा था में काली नामी डकैत को बिठाकर ताहिर प्रिंस की गाड़ी के साथ साथ लाया जाता है।
साथ ही पुलिस की जानिब से बार बार वायरलेस पैगाम चलाए जा रहे होते हैं कि काली नामी डकैत पुलिस को चकमा देकर एक गाड़ी में फरार हो चुका है और आबद बाक्सर समेत बादामी बाग पुलिस उसका ताक़ुब कर रही है। पुलिस की जानिब से जारी किए गए ये वायरलेस पैगाम DSP ऑफिस में लॉग बुक में मनोवन रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं और ये रिकॉर्ड पुलिस की किसी भी जायज या नाजायज कार्रवाई को प्रोटेक्ट करने के लिए सबूत का काम करते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस की जानिब से एक और पैगाम जारी किया जाता है कि मुल्ज़मान ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी है, लिहाजा पुलिस ने भी अपने बचाव की गर्ज से जवाबी फायर खोल दिया है। और फिर कुछ देर बाद एक और पैगाम जारी किया जाता है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजा में मुल्ज़मान को गोलियां लगने से उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है और शिनाख्त करने से ये पता चला है कि काली डकैत के साथ मारा जाने वाला मुल्ज़म कोई और नहीं बल्कि ताहिर प्रिंस था। ताहिर प्रिंस पर माजी में होने वाली डकैती और कत्ल के पर्चों की वजह से पुलिस के लिए ये साबित करना जरा भी मुश्किल नहीं था कि ये पुलिस मुकाबला जाली नहीं बल्कि बिल्कुल असली था। पुलिस मुकाबला का सही या गलत होना ये एक अलग बहस है, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर आबद बाक्सर की एक बात बिल्कुल सच है कि जब मुजरिमान इंसाफ की अदालत से शवाहद की कमी या अपने असर और रसूख की वजह से बआसानी बरी हो जाएं और खुले आम मुआशरे में जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म रखें तो फिर ऐसी सूरत में कुछ काम गैर कानूनी तरीके से करना जायज होते हैं। आबद बाक्सर की इस जस्टिफिकेशन से मुतालिक आप दोस्तों का क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। और सबसे अहम सबक जो हमें इस कहानी से मिलता है वो ये कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए अपनी घरेलू नचाकी और दीगर मामलात को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी गलत कदम बच्चों की जिंदगी पर पूरी तरह से असरअंदाज हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को बुराई के रास्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आई होप कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।